कबीर ने अपनी बातचीत में कहा कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं और ये उनकी बहुत हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि आपके साथ काम करें, लेकिन अब आगे अगर ऐसी कोई कहानी मिले आपके मन में कबीर के साथ काम करने की इच्छा? मैंने जैसे कहा कबीर बहुत पुराने दोस्त हैं यार, मैंने उनकी हाँ स्कूल में जो वो प्लेस करते थे हाँ फिल्म करेंगे उनके साथ इंशाल्लाह यार, मतलब ये सब दोस्त हैं, हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, सालों से सुनते हैं उनके साथ, और जब भी कोई चीज़ ऐसी लगेगी जो हम साथ मिलके कर सकते हैं तो 100%। अभी कोई ऐसी ऑन द एनुअल कोई चीज़ नहीं है। Okay, one last question. A lot of appearances these days and people are already talking about her as an upcoming actress, you know, like she will make her debut soon in future. What do you feel about this? Like people are already looking for her as an actress. I've said this very often here. I mean, to go out publicly does not mean you want to be an actor. You go out publicly does not mean you want to be an actor, or maybe you want to. But the point is very clear. I mean, you know, like I said, I requested everybody, and I say it with love. I understand it's a job. They're not movie stars. They just happen to be a movie star's children. And I think they're very respectful and they're very decent. When they come out with me, I make sure that they stand and do a picture because I know it's meant to be important. I don't know how, but it is meant to be important. So I request everybody that, you know, maybe if you see them publicly, two things: don't assume. One, that they're movie stars, so they'll be able to handle media like I do. You know, if you come even in hundreds, I know I can. You're my friends. I can tell you, thoda piche hat jao, yeah. They get awkward. And secondly, just because they come out publicly does not mean they want to be actors. As a matter of fact, जो स्कूल है मैंने सुना है जब लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो पब्लिकली नहीं आते कि कोई देखे ना उनको, कैमरा पे ना आए, सीधा फिल्म के अंदर आए. So no, my children will finish their studies. मेरे घर में मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होने की, वरना मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती. So they have to finish the college. Savannah is still in 11th. She has 4 or 5 years of studies left. Aryan has about 4 years. And like I've said, if they want to be actors, Savannah wants to, then she will study to be an actor. And so there's a long way to go here. Just because she comes out publicly does not mean that we are taking her out in public. So दुनिया उसको देख के heroine बना देना. I'm an outsider. I came from Delhi. I never came out publicly. I just came in films. I hope my children do that once they are educated enough to do it. Sir, how will you inspire yourself from last 25 years? Actually, people inspire me यार. Like say today's little thing कि घर के बाहर इतने लोग इतनी you know film actors जब इतने साल से काम करते हैं तो उनका जो रोल होता है I think becomes a little bigger than just being actors. लोग अपनी hopes, अपनी aspirations, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें इंडिया में स्पेशली एक्टर्स के साथ लगा देते हैं, जो शायद सही नहीं है. ये नहीं है कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, बट यू स्टार्ट फीलिंग दैट पीपल लव यू फॉर अदर रीजंस देन जस्ट बीइंग एन एक्टर. तो वो जो लव है वो अनएक्सपेक्टेड है यार. वो मैं कभी सोचा नहीं कितना मिलेगा. कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के, हम अभी यूरोप में शूट कर रहे थे हैरी मेट सेजल, ऐसी जगहों में जहाँ मैं कभी गया नहीं पहले, बुडापेस्ट में सड़कों पे सारे इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है हर देश जो है हमारा ही देश है. जेन्युइनली आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इंडियंस हैव स्प्रेड सो फार एंड वाइड. तो इतना प्यार मिलता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग कि यार दिस मस्ट बी स्पेशल, एंड इफ इट इज़ स्पेशल यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्थ while for everyone else who thinks you are special. So that inspires me a lot. शायद खाने की बात की आपने, ईद के मौके पर आपको ऐसी कौन सी खास डिश है जो बहुत पसंद है? मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं खाते पीते घर का हूँ. मुझे खाने का इतना शौक नहीं, बट जो भी बना होगा मैं खा लूँगा. और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, अभी भेजेंगे चीज़ें. आई एम श्योर सलमान के घर से भी आएगी बिरयानी, मेरे 2-4 दोस्त हैं, तो वो सब मिक्स करके मैं सब खा लूँगा मैं. खान साहब, अब तक की सबसे यादगार ईदी आपके लिए क्या थी? I mean, just because I don't have parents anymore, I think must be the last few memories of spending Eid with them. You know, to go and say your prayers and then come back home, sit with the family. फिर उनके दोस्त थे कुछ माँ बाप के, तो उनके घर में जाना. हालांकि बचपन में बड़ा बोरिंग लगता था माँ बाप के दोस्तों के घर जाना, but now I think of it and I remember I was just talking about it before coming here. तो अच्छा लगता था, घर में जाओ, बहुत सिंपल होता था. इतना सॉरी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ईद होगी. बड़ी सिंपल सी होती थी, 4-5 लोग बैठे हैं, अपना बातचीत की, खाना खाया एंड घर आ गए. सो आई थिंक दोज आर वेरी स्पेशल. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, तू तो रह गया. सुमित भाई. ईद मुबारक आपको भी. would like to thank you firstly for like staying up for quite some time. 5 मिनट अच्छे विजुअल्स मिल गए.
कैमरामैन रह जाते थे, तो you gave ample time thanks to you. अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, And मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ से मतलब I see like lots of everyone come up dressed up, look nice. So it's a good feeling coming here. पूजा अच्छी लग रही है, beautiful. And शिल्पा आज अच्छी लग रही है। वैसे नहीं लगती, वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लग रही। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं, और काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी 2018 में। हाँ 2018 में इंशाल्लाह। with time, do you think you have become spiritual and philosophical with time? दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गए की तरफ? नहीं यार, आई थिंक when you have children, I have 3 of them, I think you start becoming gentler. और फिर जो पुरानी बातें हैं जो बचपन में शायद लगती थी कि ठीक ठाक हैं, ऐसे इतना हम उसको जो फ़लसफ़े होते थे, अच्छी बातें होती थी, उन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। बट एज़ यू ग्रो ओल्डर आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स। और बीइंग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कई बारी मैं वो चीज़ें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता, जो कहानियाँ सुनी हुई हैं या मोमेंट्स सुनी हुई हैं। आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फ़िलोसॉफिकल हो गया। मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपनी फ़िलासफ़ी से, सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया मैं। बट या आई डू थिंक गुड थिंग्स, आई डोंट थिंक बैड थाट्स, एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसी सोचते हैं। सो ऐसा नहीं, एज के साथ नहीं, आई थिंक अपनी अपनी एक कुव्वत होती है, अपना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आदमी कैसा बनता है। Do you write also something like you read a lot? I write sometimes. जब मैं अकेला आउटडोर पे होता हूँ तो लिखता हूँ, अमूमन घर में तो वक्त ही नहीं मिलता, बट इफ़ आई एम आउटडोर, पैकअप हो गया, आई एम सिटिंग इन द रूम, देन आई राइट। Thank you so much guys, thanks. हाँ वो एक बुक है यार, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब ऐसे एक्चुअली वो यही थे, 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में के बारे में थे, तो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो मैं पहले भी बताया भाई ये बात, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा जब बेटे का जन्म हो आर्यन का तो किताब ख़त्म हो, फिर बेटी का हो गया तो मुझे लगा गलत है, बेटी के जन्म पे ख़त्म हो। अब अब्राहम का हो गया और वो काफ़ी वक्फे बाद हुआ है, 10-11 साल बाद, तो अब है कि वहाँ तक लेके आनी है मुझे कहानी। सो आई थिंक वो सब अच्छा हैप्पी होगा, बट इट इज़ जस्ट मोमेंट्स आई हैव स्पेंट विद ऑल ऑफ यू एंड द फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन। इतनी टेक्निकल किताब नहीं है, इट्स अ ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल इमोशनल बुक। पहले मैंने रखा था 20 years of a decade, तब ऐसा लिखा था कि 10 साल में ऐसा लगता है 20 साल की ज़िंदगी जी ली, अब तो 25 हो गए, तो आई थिंक वो टाइटल थोड़ा गलत हो गया हुआ। फिल्म के बारे में तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो उनका whether he likes to talk about it, but जैसे सबको मालूम है फिल्म इज़ अबाउट vertically challenged person, as they say, special. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, और टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म देश में बनाना, यू नो, टू जेन्युइनली, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी अदरवाइज, टू मेक इन इंडिया दिस टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट ऑसम। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी टीम ऐसा कर रही है। हमने जैसे हॉबिट और बहुत सारी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एंड हम बहुत लोगों से मिले, और जो हम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कहा इस समय के अंदर द अमाउंट ऑफ टाइम विल स्पेंड पॉसिबल नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग है। हमने जैसा आपने कहा 12-15 दिन की शूटिंग कर ली, और हमारे पास 11-12 मिनट फिल्म के एडिट हैं। अभी मुझे आनंद ने कहा है मैं थोड़ा और एडिट करके दिखाऊंगा, बट वी आर रियली वेटिंग कि वो जैसे ही वो वैसा हो जाए, बट उसमें बहुत वक्त लगता है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए 2 महीने लगते हैं उसको फुली देखने में। सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़िल्म दिसंबर में ख़त्म हो जाए। तो आज से शुरू हुई है जैसे, तो 15-16 महीने लगेंगे पूरी फिल्म को ख़त्म करने में। तो एज इज़ बीइंग डन, वो VFX में जा रही है। हमने नया ऑफिस बनाया गोरेगांव में, स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म एंड अदरवाइज, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए, एडिट, पोस्ट, DI ये सब करना। सो बहुत एक्साइटिंग है, मतलब आई एम रियली डाइंग टू सी। So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sumit, disperse on this note कि like next time we will be coming all dressed up like. हाँ, और अच्छा ये रूल बनाते हैं, सुमित आप डिसाइड करना ड्रेस कोड, लड़कियों का कलर और लड़कों का, और हम सब वैसे पहन के आएंगे। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं भी जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं 1 महीना पहले कांटेक्ट करके तो सबको आप आगाह कर देना कौन से कपड़े पहनने,
कुर्ता पजामा है, सलवार है कि सब सलवार कमीज़ पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, सूट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, जो आपका दिल करे। कलर कोड आप डिसाइड कर लेना कि लड़कियां लाल में होंगी या पीले में होंगी, सफ़ेद में होंगी, लड़के काले में होंगे, लाइट ब्लू में होंगे। सो एटलीस्ट सब सेम के सेम लगेंगे। Very nice. And before you leave, just pose for the cameras. फिर से अभी तो तारीफ किया 5 मिनट क्या मैं यहाँ पे अलग बोल। थैंक यू एवरीबडी एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ईद मुबारक। सबका हो गया, पोज हो गया सबका। थैंक यू। खान साहब